یہاں آپ کو بتائیں اسپیشل رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم۔ ڈویژنل کمشنر نے آٹے کی رپورٹ چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں ایک ماہ کے دوران 53,45,313 بیگز فری تقسیم کیے گئے۔ اسپیشل رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم اختتام پذیر۔ ڈویژنل کمشنر نے آٹے کی رپورٹ چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں ایک ماہ کے دوران 53,45,313 بیگز فری تقسیم کیے گئے۔ ضلع فیصل آباد میں 23,82,257 تھیلے تقسیم کیے گئے۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 10 کلو آٹے کے 8,70,108 تھیلے مستحق افراد میں تقسیم کیے گئے۔ ضلع جنگ میں مفت آٹے کے 13,94,256 تھیلے دیے گئے۔ ضلع چنیوٹ میں 6,98,692 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے۔ یہاں بات کریں پنجاب حکومت کا مفت آٹا پیکج اختتام پذیر۔ فیصل آباد میں شہری آٹے کی امید لیے آج بھی مختلف آٹا پوائنٹس پر پہنچ گئے۔ پنجاب میں آٹا اسکیم 25 رمضان المبارک کو اختتام پذیر ہو گئی، لیکن شہری آٹے کی امید میں آج بھی مختلف آٹا پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ اسکیم ختم ہونے کا سن کر پنجاب حکومت سے اسکیم مزید 2 روز کے لیے بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے سارا رمضان مفت آٹا فراہم کیا۔ کئی ایک شہریوں کو علم نہیں تھا کہ 25 رمضان المبارک کو اسکیم ختم کر دی جائے گی۔ ابھی بھی بہت سے مستحق ہیں جن کو آٹا نہیں ملا۔ بھئی اج تو سانو 3 ملے پر پورا رمضان ہو گیا سانو اتنے دھکے کھاندیاں نو تے اج یہ ہے کہ 3 ملے سانو۔ مرد و خواتین کا کہنا تھا کہ اس امید پر آئے تھے کہ شاید آج آٹا مل جائے، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ صرف 25 رمضان المبارک تک ملنا تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئے ہیں، لیکن نا امید ہو کر واپس جانا پڑ رہا ہے۔ ایک بھی نہیں ملا ابھی تو، پہلی مرتبہ لے کے آیا 3 ملیں گے۔ ہاں جی، شہریوں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ مفت آٹا اسکیم چند روز کے لیے بڑھا دی جائے تاکہ جن کو آٹا نہیں ملا وہ بھی لے سکیں۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گندم کی خریداری شروع۔ کاشتکاروں سے 11 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں خریدی جائیں گی۔ ضلع بھر میں 7 خریداری مراکز قائم۔ گندم کی خریداری شروع کر دی۔ ضلع کے تمام خریداری مراکز پر گندم کی خریداری کا عمل جاری۔ کاشتکاروں سے 11 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں خریدی جائیں گی۔ محکمہ خوراک نے ضلع بھر میں 7 خریداری مراکز قائم کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شمائلہ بانو کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں 2.5 لاکھ سے زائد باردانہ کی بوریاں جاری کر دی گئی ہیں۔ باردانے کا عمل 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ جو کاشتکار باردانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے متعلقہ سینٹر سے رابطہ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں سے 20,000 سے زائد گندم کی بوریاں خرید لی گئی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 11 لاکھ سے زائد بوریاں خریدی جائیں گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 7 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پہ باردانہ کی تقسیم کا عمل جاری ہے اور گندم کی بھی آمد شروع ہو چکی ہے۔ 400 کے قریب کسانوں سے ہم گندم ریسیو کر چکے ہیں اور باردانہ کا عمل 1 مہینہ تک تقریباً جاری رہے گا۔ جو کاشتکاران باردانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے متعلقہ سینٹر سے باردانہ لے جا سکتے ہیں۔ چنیوٹ میں بھی محکمہ خوراک نے گندم کی خریداری باقاعدہ طور پر شروع کر دی۔ ضلع میں قائم 5 گندم خریداری مراکز پر 5 لاکھ بوری ٹارگیٹ میں سے 10,512 بوری گندم خرید لی گئی۔ 5 گندم خریداری مراکز پر 236 کاشتکاروں کو 95,000 بوری باردانہ جاری کر دیا گیا، جبکہ ضلع بھر میں 2,43,000 ایکڑ رقبے میں سے تقریباً 40 ایکڑ پر گندم کی کٹائی کر لی گئی۔ تاہم زرعی افسران نے کسانوں کو گندم کی کٹائی فصل کی پوری طرح پکنے پر ہی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سینٹر انچارج کا کہنا ہے کہ پہلے نمی کا تناسب زیادہ ہے، اب کم ہونے پر خریداری شروع ہو گئی ہے۔ لالیہ میں گندم کی خریداری کا عمل شروع ہو گیا۔ تحصیل بھر میں 2 گندم خریداری مراکز بنا دیے گئے۔ لالیہ سینٹر پر 13,000، چناب نگر سینٹر پر 12,000 میٹرک ٹن خریدنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ تحصیل لالیہ میں 25,000 میٹرک ٹن خریدنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ لالیہ سینٹر سے اب تک 78,000 سے زائد باردانہ جاری ہو چکا ہے، جبکہ 10,000 بوریاں گندم بھی خریدی جا چکی ہیں۔ دونوں گندم خریداری مراکز پر کسانوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گوسرا میں چینی مافیا کے خلاف کارروائیاں 2 مختلف کارروائیوں میں 6500 بوری چینی پکڑ لی گئی ہے۔ پہلی کارروائی میں ہمایوں کریانہ کے گودام سے 2900 بوری چینی پکڑی گئی۔ اشرف سندھو کی چینی مافیا کے خلاف کارروائیاں 2 مختلف کارروائیوں میں 6500 بوری چینی پکڑی گئی۔ پہلی کارروائی میں ہمایوں کریانہ کے گودام سے 2900 بوری خاک کی چینی پکڑی گئی۔ دوسری کارروائی میں اشرف دی ہٹی کے گودام سے 3600 بوری چینی برآمد کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر رضوان اشرف نے دونوں گودام سیل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی مہنگائی کر کے مہنگے داموں اشیاء خورنوش کی فروخت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ نے چینی ذخیرہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان ڈوگر کا گودام پر چھاپا، چینی کی بوریاں تحویل میں لے لیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی ڈوگر نے گودام سیل کر کے 430 بیگ چینی بھاگ سرکار ضبط کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشد کا کہنا ہے ذخیرہ اندوز ناجائز منافع خور مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔
फौजी फर्टिलाइजर्स की जानिब से DAP खाद की 25 किलोग्राम की पैकिंग मुतारिफ करा दी गई। काश्तकारों के लिए अब 25 किलो का थैला खरीदना आसान होगा। जंग, चिनियोट और तानियावाला में तकारीब का इनेकाद किया गया। से DAP खाद की 25 किलोग्राम की पैकिंग मुतारिफ करा दी गई। जंगला मंडी में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। जिलाई हेड फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और मोहम्मद ने महमूद ट्रेडर्स पर फीता काटा। इस मौके पर काश्तकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट हेड FFC और मोहम्मद का कहना है, कंपनी की जानिब से छोटी बोरी की फ्राहमी का मकसद आसान ट्रांसपोर्टेशन और छोटे काश्तकारों को रिलीफ देना है। काश्तकारों ने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। चिनियोट में भी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने पहली बार 25 किलोग्राम में DAP खाद मुतारिफ करा दी। काश्तकारों के लिए अब 25 किलो का थैला खरीदना आसान होगा। हेड ऑफ सेल चिनियोट अहसन इरशाद का कहना था, पहले छोटे काश्तकार के लिए 50 किलो DAP खरीदना मुश्किल थी, अब 5,500 रुपए में 25 किलो का थैला दस्तयाब होगा। FFC गुज़श्ता 40 साल से किसान की पैदावार बेहतर बनाने में मसरूफ है। डीलरों का कहना था कि छोटा बैग आने से डीलर और काश्तकार दोनों को फायदा होगा। कम रकबे वाले काश्तकार भी बेहतर तरीके से काश्तकारी कर सकेंगे। FFC की जानिब से तांदियावाला की गल्ला मंडी में चंद शाह ट्रेडर्स पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल हेड फैसलाबाद कमरुल जमान, हेड ऑफ सेल मुस्तफा दिलदार, हेड ऑफ एग्री ट्रेडरी फैसलाबाद साजिद फरीद, पीर अकरम शाह, पीर चंद शाह, पीर अहमद शाह, पीर अब्दुल हक शाह, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मलिक जफर, कौंसलर राय इकबाल, इलाके भर से काश्तकारों, खाद डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। रीजनल हेड फैसलाबाद कमरुल जमान ने सोना यूरिया की 25 किलोग्राम पैकिंग पर आगाही दी। तो यहाँ बात करें टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स का मसला हल ना हो सका। ईद की छुट्टियां भी टेक्सटाइल मालिकान के लिए मुश्किल का बायस बन गए। ईद की तवील छुट्टियां टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलात का बाइस बन गई। 5 छुट्टियों को आलमी ऑर्डर्स की तकमील में मुश्किलात समेत रिफंड्स में रुकावट करार दे दिया। 5 छुट्टियों से प्रोडक्शन कम होगी और आलमी ऑर्डर्स ताखीर का शिकार हो जाएंगे। इधर FBR ने रिफंड्स ताखीर से मिलने का इंदिया दे दिया। 5 छुट्टियों के बाद जारी होने वाले रिफंड्स मई के पहले हफ्ते में मिलेंगे। मालकान की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया, कम अज कम रिफंड्स तो वक्त पर जारी किए जाएं। कहा, रिफंड्स ताखीर होने से मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी मुश्किल आएगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग के 1.5 लाख शहरी कहां गए? जंग में डिजिटल मर्दमशुमारी के नतायज ने इंतजामिया को चकरा दिया। मर्दमशुमारी में 1,53,525 शहरी कम निकले। शुमार कुनिंदा 20 अप्रैल तक दोबारा घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। इंतजामिया को चकरा दिया। मर्दमशुमारी में 1,53,525 शहरी कम निकले। शुमार कुनिंदा 20 अप्रैल तक दोबारा घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। जिला इंतजामिया ने सादजा को गुमनाम शहरी ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। इंतजामिया को जमा करवाई गई रिपोर्ट में पहली मर्दमशुमारी के मुकाबले में होने वाली नई डिजिटल मर्दमशुमारी में 1,53,225 शहरी कम निकले। शुमार कुनिंदा 20 अप्रैल तक दोबारा घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। इंतजामिया के मुताबिक घर घर जाकर तस्दीक करने के अमल में लापरवाही नताज पर असरअंदाज हुई। 20 अप्रैल के बाद आने वाले नताज को गलतियों से शफाफ बनाया जाएगा, जिसके बाद हतमी लिस्ट मुरत्तिब की जाएगी। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का मामला, टिकट्स की तकसीम के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान ने फैसलाबाद के 16 हलकों के लिए इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। इंतखाबात की तैयारियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटों की तकसीम के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। चेयरमैन इमरान खान ने फैसलाबाद के 16 हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। जड़ावाला, दांतियावाला, चक जुमरा और तहसील सदर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। 16 हलकों के लिए 70 से ज्यादा उम्मीदवारों ने टिकट के असूल के लिए इमरान खान को इंटरव्यूज दिए। फैसलाबाद के शहरी हलकों के 5 हलकों के इंटरव्यूज ताहाल न हो सके, जिन हलकों में PP 112, 114, 115, 116, 117 शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 20 अप्रैल तक उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा कराने हैं। उधर जमात इस्लामी की जानिब से इंतखाबात एक रोज में कराने की कोशिशें जारी। फैसलाबाद से रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब कहते हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ऐसा होना नागुज़ीर है। मियां ताहिर अयूब का कहना था कि इलेक्शन के मुतालिक जमात इस्लामी का असूली मौक़िफ़ है, जिस पर तमाम जमातें मुतफिक हैं। ईद उल फितर के बाद APC में सब कुछ तय हो जाएगा। APC में तमाम सियासी जमातों को शरीक किया जाएगा। जमात इस्लामी मेजबानी के फराइज़ सर अंजाम देगी। सबको साथ लेकर चलने में मुल्क की भलाई है। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने एक ही दिन में 2 मेन स्ट्रीम लाइन पार्टियों की क़यादत शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की है और अब सब पार्टियों ने अपनी अपनी कमेटी कायम कर दी है और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज काफ्रस होगी और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में एक ही दिन में सारे 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो जाए। चिनियोट में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमले की तरबियत का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने तरबियत मुकम्मल करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कायदे आज़म एजुकेशनल अकेडमी चिनियोट में होने वाली तकरीब में
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने 2 रोजा ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले मास्टर ट्रेनर्स में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। उनका कहना था कि मास्टर ट्रेनर मुतल्लिका अफराद जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी है उन्हें ट्रेनिंग देंगे। डॉक्टर अस्पताल इंतजामिया मरीज डॉक्टरों से नाला। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, शोबा बैरूनी मरीजों और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पताल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स ने शोबा बैरूनी मरीजों और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद कर दिया। एमएस ऑफिस का घेराव करके धरना भी दिया। साबिक सेक्रेटरी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर नौमान चौधरी ने कहा कि ईद की छुट्टियों में डॉक्टर इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी दे रहे हैं, मगर अस्पताल इंतजामिया ने शोबा बैरूनी मरीजा में भी जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी है। प्रोफेसर सर्जरी डॉक्टरों की ACR पर दस्तखत भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ सर्जरी के प्रोफेसर्स हैं जिनकी तरफ से हमारे डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को, हाउस फीसर्स को, PGRs को इस लेवल तक जिद और परेशान किया जा रहा है और यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस के ऊपर पुअर लिखा जा रहा है। वो ड्यूटीज़ में मौजूद भी हैं तो उनको फिर भी ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस साइन नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब शोबा बैरूनी मरीजा में इलाज मुआवजे के लिए आए मरीज ख्वार हो गए। इलाज की सहूलत बंद होने से मरीज रो पड़े। खातून मरीजा का कहना था कि घर में खाने के लिए आटा नहीं, चेकअप के लिए किराया भी उधार लेकर आई हूँ। डॉक्टर एहतजाज पर हैं, कोई चेकअप नहीं करने वाला। हुकूमत डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। किराया भी किसी से मांग के आए, पैसे नहीं थे और यहाँ आए तो कह रहे हड़ताल है, ना पर्ची बना रहे हैं ना दवाई दे रहे हैं। खाने के लिए बच्चों के पास आटा भी नहीं है 5-6 दिन से। अभी उधारे पैसे मांग के किसी से आई हूँ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी भी दी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डायरेक्टर बार हॉर्टिकल्चर PHA फैसलाबाद की जानिब से मुलाजमीन को निकाले जाने और डेली वेजेस मुलाजमीन को वर्कमैन का ओहदा न देने CBA यूनियन का एहतजाज, ऑफिस में धरना दे दिया। CBA यूनियन PHA ने डायरेक्टर हार्टिकल्चर की जानिब से मुलाजमीन को निकाले जाने पर PHA हेडक्वार्टर्स में शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने PHA इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना भी दिया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन और CBA यूनियन के सदर राना यासर ने मुतालबा किया कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर ज़हीर अहमद को फौरी ओहदे से हटाया जाए और FDA की तर्ज पर डेली वेजेस मुलाजमीन को निकाले जाने के बजाय वर्कमैन का ओहदा दिया जाए। फैसलाबाद शहर दे विच मिट्टी गंदगी जिहड़ी कि डेली वेजेस मुलाजमीन ने अज ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ 2021 ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, जबकि ये लेटर इंतजामिया जारी करे। CBA यूनियन का एहतजाज करते हुए कहना था कि अगर तमाम डेली वेजेस को दूसरे सरकारी इदारों की तरह वर्कमैन का ओहदा न दिया गया तो कल वजीर दाखिला के घर के सामने एहतजाज करेंगे। कैमरामैन इरफान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में जंग रोड मॉडल बाजार के सामने शहरियों का सीवरेज मसाइल हल न होने पर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर राना मोहम्मद अदनान खान कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा आबादी ताफुन ज़दा फिजा से मुतासर है। फैसलाबाद जंग रोड मॉडल बाजार के सामने सीवरेज के मसाइल हल न होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। शहरियों ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। शहरी जंग रोड, अमीन टाउन, मुख्तार कॉलोनी, रशीदाबाद, नेमताबाद में ताफुन ज़दा फिजा से परेशान दिखाई दिए। जमात इस्लामी के साबिक नायब सदर राना मोहम्मद अदनान खान कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हो रही है। हमारा जो गटरों का पानी है वो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। ये जंग रोड से 200 फीट के फासले पर, मेन रोड से 200 फीट के फासले पर इतनी मिजरी है आबादी में कि सोचा नहीं जा सकता। इतनी बदबू और इतने ताफुन है कि इसका सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ से पिछला जितना इलाका है वो सारा डूबा पड़ा है। शहरी कहते हैं कि अरसा दराज से सड़कों की यही सूरत हाल है, लेकिन वासा की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ताफुन ज़दा फिजा के बाइस बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं। कमिश्नर से अपील है कि मसाइल को हल किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि मेन लाइनें हैं वो सिर्फ मेन रोड पे से गुजरे, मोहल्ले में से ना गुजरे। बस तकरीबन 2 माह से हम जो है ना जलील हो रहे हैं। ये हमें रोजाना कह के जाते हैं कि आज साफ हो जाएगी, कल सफाई हो जाएगी, आज सफाई हो जाएगी। आज भी सुबह 6 बजे आ जाते हैं, इनके पास अमला सफाई कोई नहीं है। वासा को चाहिए कि इन इलाकों में सीवरेज के मसाइल को जल्द से जल्द हल करें ताकि शहरी सेहतमंद माहौल और साफ सुथरी फिजा में सांस ले सकें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।
सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी की जड़ावाला डिवीजन के अफसरान के साथ मीटिंग। क्राइम मीटिंग में एसपी जड़ावाला, सर्कल अफसरान और एसएचओ शरीक हुए। सीपीओ अली नासिर रिजवी ने स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। सीपीओ अली नासिर रिजवी ने शुरका मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, राजधानी की वारदातें रोकने के लिए सर्कल अफसरान मजबूत गश्त प्लान करें। फैसलाबाद पुलिस के तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैजेस लगाने की तकरीब का इनेकाद। हवलदार ओहदे पर तरक्की पाने वाले 78, एएसआई 18 और सब इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले 18 अफसरान को बैजेस लगाए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी और तरक्की पाने वाले एहलकारों के अहल खाना ने बैजेस लगाए। सीपीओ अली नासिर रिजवी ने तरक्की पाने वालों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। सीपीओ अली नासिर रिजवी का कहना था कि तरक्की पाने वालों की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। द लेगेसी स्कूल फैसलाबाद अपने तलबा को कैरियर कंसल्टेंसी फराहम करने में पेश। लेगेसी ग्रुप की जानिब से लेगेसी एडवाइजर की ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। ये रिपोर्ट जानिए। फैसलाबाद का द लेगेसी स्कूल अपने तलबा को करियर कंसल्टेंसी देने में पेश। लेगेसी ग्रुप ने लेगेसी एडवाइजर के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। स्कॉप इंस्टीट्यूट और लेगेसी एडवाइजर में मुआहदा भी तय पा गया। डायरेक्टर लेगेसी स्कूल आदिल यासीन और डायरेक्टर स्कॉप इंस्टीट्यूट डॉक्टर अम्मार ने दस्तखत किए। आदिल यासीन का कहना था कि तलबा को बैरून ममालिक तालीम हासिल करने के लिए साजगार माहौल मुहैया करेंगे। बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी और कंसल्टेंसी के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी जो उनसे है प्रोवाइड की जाएगी और उससे जो बच्चों का है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर लेना वो मज़ीद आसान हो जाएगा उनके लिए। और ना सिर्फ ये बल्कि उनको अच्छी स्कॉलरशिप्स और जो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बच्चों को जो उनसा है विद टाइम ऑन टाइम जो उनसा है बच्चों को ये डिस्कस की जाएंगी। लेगेसी एडवाइजर तलबा को करियर काउंसलिंग के साथ साथ बैरूनी ममालिक स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के लिए भी मदद फराहम करेगा। लेगेसी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स का कहना था कि इक़दाम से तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए बेहतरीन माहौल मिलेगा। It is wonderful for the students who want to begin their career in study abroad, especially जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के और बाकी स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को जो है मनवा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने न्यू प्लेटफॉर्म जो है ये इंट्रोड्यूस कराया है, लेगेसी स्टडी एडवाइजर। बेस्ट व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, ताकि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके और ताकि हम लोग यहाँ पर करते ये हैं कि स्टेप 1 से लेकर एंड तक अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, किस तरह से उनको गाइड करना है और हर चीज़ को कि किस तरह से अप्लाई करेंगे, आइल्स को करवाने की तैयारी करवा। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो हम उनके लिए ये एक न्यू प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं कि वो इधर से ही आगे अपना जो है वो परस्यू करें। MOU साइन करने की तकरीब में CEO लेगेसी ग्रुप मोहम्मद यासीन ने भी शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद है। महंगाई के बायस झंग के बाजार वीरान हो गए। दुकानदार भी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि जूतों और कपड़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। करीब आने के बावजूद झंग के बाजारों की रौनकें बहाल नहीं हो सकीं। होशरुबा महंगाई ने शहरियों की कुव्वते खरीद को भी कम कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी है कि ईद की खरीदारी करना मुहाल हो चुका। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। ईद की खरीदारी कैसे करेंगे? लोगों में खरीद जो है ना वो कम हो गई है। सैलरी जो है लोगों की वो अरसा कई सालों से बढ़ी नहीं है। महंगाई की रेशो बहुत ज़्यादा चली गई है। अगर कोई गाहक आता है तो वो कहता है कुछ सस्ती चीज़ें दे दें, सस्ती दें तो उनका म्यार भी नहीं बनता। तो इस वजह से इस वक्त दुकानदार भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है कि ना सस्ती चीज़ पहले वाले जो चीज़ें थी वो कहाँ से मिलेंगी, अब वो तो नहीं मिलेंगी। दूसरी जानिब बाजार वीरान होने के बायस दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई की वजह से लोग खरीदारी के लिए नहीं आ रहे। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि मीठी ईद को अच्छे तरीके से मना सकें। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग।